بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از صفیہ جبین. آئی ایم یور ہوسٹ. اور آج ہماری لائیو انٹرویو سیریز میں 2023 میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعلق مظفر آباد سے ہے. عظمیٰ حفیظ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن سے میں بہت عرصے سے خواہش مند تھی کہ ان کے ساتھ لائیو سیشن کیا جائے، ان سے بات چیت کی جائے اور ان کی لائف جرنی کے بارے میں سنا جائے. ہماری سیریز کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم اپنی سیریز میں تعلیم و تربیت کو فوکس کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم اپنے مہمان کو ویلکم کریں گے تاکہ پھر ہم بات چیت کو آگے بڑھا سکیں بغیر وقت ضائع کیے ہوئے. کوئی بھی آپ کو لائیو نظر آتا ہے سوشل میڈیا پہ، ہوسٹ ہو چاہے گیسٹ ہو چاہے سنگل لائیو سیشن ہو، تو ذہنوں میں لوگوں کے ایک ہی نام آتا ہے، ریحان اللہ والا. تو یہ تو موضوع ہمارا رہے گئی کہ مینٹور جو ہیں، ہمارے مینٹورس کون کون ہیں، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ سر ریحان ہے. آئی ایم آلسو اے اسٹوڈنٹ آف سر ریحان. تو ہم بات چیت شروع کرتے ہیں. السلام علیکم عظمیٰ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں صفیہ؟ الحمدللہ عظمیٰ میں ٹھیک ہوں. عظمیٰ تھینک یو سو مچ کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں اتنے انتظار کے بعد. تو ہمارے ویورز، میں نے ایک بہت ہی مختصر سا تعارف کرایا، بلکہ تعارف تو کرایا ہی نہیں ہے. عظمیٰ کے اپنے لفظوں میں جب لوگ تعارف سنیں گے تو میں چاہوں گی کہ 3 سے 4 جملوں میں آپ اپنا ایک مختصر سا تعارف کرائیے تاکہ ہمارے ویورز جان سکیں آپ کے بارے میں. فرسٹ آف آل بہت شکریہ، اور آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور ساتھ میں آپ نے اتنا ویٹ کیا. آپ کافی دفعہ مجھے کہتی رہی آئی ایم ریئلی ویری سوری کہ میں اس طرح آپ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پائی. میرا تعارف یہ ہے کہ میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے. 2012 میں نے جو ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کمپلیٹ کی. بیچلرس میرا سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہے اور ماسٹرز ایم ایس جو ہے وہ میرا کمپیوٹر سائنس میں ہے. اسٹڈیز ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی تو ساتھ ہی جو ہے میں نے ٹیچنگ فیلو کے طور پہ کام کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا. جس یونیورسٹی میں پڑھتی تھی وہیں پہ ڈین تھے ہمارے، ان کے ساتھ میں نے فیلوشپ اسٹارٹ کر دی. تو پڑھانے کا کام جو ہے میں نے تبھی سے اسٹارٹ کر دیا تھا جب میں یونیورسٹی میں تھی. اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ میری ساری اسٹڈیز جو ہیں وہ راولپنڈی میں ہوئی. میرے پیرنٹس کے وہیں پر ہیں اور وہیں پہ میں نے ساری تعلیم حاصل کی. اور ابھی ماسٹرز کر رہی تھی تو شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد میں جو ہے وہ کشمیر میں شفٹ ہوئی کیونکہ یہاں پہ میرے ہسبینڈ جو ہیں ان کا کام تھا، پروجیکٹ تھا، ان کے ساتھ مجھے شفٹ ہونا پڑا. اور پھر میں جو وہاں سے مجھے کوئٹ میں نے یونیورسٹی سے کیا، تو پھر میں نے یہاں پر آ کر جو ہے وہ پھر دوبارہ سے ٹیچنگ کو کنٹینیو کیا. اس کے علاوہ ڈفرینٹ سافٹ ویئر ہاؤسز میں بھی میں نے کام کیا. تو یہ میرا ایک بریف سا انٹروڈکشن ہے. امیزنگ عظمیٰ، آپ کے انٹروڈکشن میں ہی آپ کی شخصیت کی بہت ساری پہلو سامنے آ رہے ہیں، جس میں سب سے ہائی لائٹڈ جو پہلو ہے وہ ہے ٹیچر کا، کہ ٹیچنگ لائن کی طرف آنا، سافٹ ویئر انجینئرنگ، اور پھر پنڈی کہا تھا آپ نے میرے خیال میں، پنڈی سے پھر مظفر آباد آپ کی شادی کے بعد شفٹنگ، یہ سب. عظمیٰ ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی زندگی کے وہ 6 سے 8 سال، جب انسان دنیا میں آنکھ کھولتا ہے بچہ، 10 سال تک کا جو عرصہ ہوتا ہے وہ والدین کے زیر سایہ اور جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اس میں جو تربیت ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، وہ آپ ہم چاہیں گے تھوڑا سا شیئر کیجئے تاکہ وہ سب ہمارے ویورز کو پتہ چلے کہ ایک لڑکی کی تربیت کن خطوط پہ کی گئی کہ جو آج عظمیٰ حفیظ جیسی شخصیت بن کے سامنے آئی ہیں. جی، میری جو پیدائش ہے وہ اسلام آباد میں ہوئی. اور میرے فادر جو جب میں چھوٹی سی تھی تو وہ بحرین شفٹ ہوئے. پاک نیوی میں وہ جاب کر رہے تھے، تو اس جابس کے سلسلے میں ہی وہ شفٹ ہو گئے. اور میری جو مدر تھی انہوں نے مجھے اکیلے ہی پالا، اور میں اکیلی جو ہے وہ ان کی اکلوتی جو ہے وہ اولاد تھی. اس کے علاوہ بھائی ہیں، بھائی میرے جو تھے وہ دونوں کا بڑے ہیں میرے سے. تو میرے جو ہے مدر، ان کو بڑا شوق تھا کہ میں جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کروں، کیونکہ اس سے پہلے ہماری پوری فیملی میں جو ہے اس طرح سے کوئی بھی اپنی بیٹی کو پڑھاتا نہیں تھا، یا اتنا زیادہ ایجوکیشن کا جو ہے وہ اس کو پریفر نہیں کیا جاتا تھا کہ بچیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی لیول کی ایجوکیشن حاصل کریں. بس میٹرک تک حد کر کے جو ہے وہ ہم سمجھا جاتا تھا کہ بس یہ انف تعلیم ہے.
اور ان کا جو مین کام ہے وہ یہی ہے کہ وہ گھر سنبھالے، شادیاں کریں، بچے اپنے سنبھالیں، تو یہی کانسیپٹ تھا۔ لیکن میری مدر کو کیونکہ خود انہوں نے بہت زیادہ پرابلم فیس کی تھی ایسے کلچر میں جو ہے وہ آگے بڑھنے کی، تو ان کی یہی خواہش تھی اور انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ جب میری بیٹی ہوگی تو میں اس کو ضرور پڑھاؤں گی۔ میں وہ تعلیم جو میں خود اتنی شاید حاصل نہیں کر پائی ہوں، لیکن میں اپنی بیٹی کو ضرور دے دوں گی۔ تو وہ انہوں نے میرے لیے بڑی ایک جنگ لڑی اور انہوں نے ایک گاؤں سے شفٹ کیا ہمیں جو ہے وہ شہر میں، اور وہاں پہ انہوں نے کوشش کی کہ میں ان کو جو ہے وہ تعلیم دے سکوں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر میں وہیں پہ اسی جگہ پہ رہی تو میں بچوں کو آگے لے کر نہیں چل سکوں گی، اور اکیلے اس دور میں رہنا اور بچوں کو اکیلے سنبھالنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام تھا، لیکن انہوں نے بڑی ہمت کی اور اس جو ہے وہ ذہن میں یہ رکھ کر کے میرے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کریں گے، وہ وہاں سے نکلی اور بہت زیادہ پرابلمز انہوں نے فیس کی۔ اور پھر جو ہے کیونکہ ایک خوف تو ذہن میں رہتا ہے کہ جب ایک عورت اتنا بڑا اسٹیپ لے کر نکلتی ہے تو اس کو بہت ساری چیزوں کا خوف ہوتا ہے کہ اگر میں وہ بڑے پھونک پھونک کے قدم رکھتی ہیں کہ میرے اوپر کوئی بات نہ ہو جائے، تو اسی طرح سے میں بھی میرے اندر بھی وہ خوف ضرور تھا کہ میری مدر جو ہیں ان کو کبھی ان کے اوپر کوئی نام نہ لے کہ انہوں نے اتنی جو ہے وہ مشکل سے ایک اسٹیپ لیا تو ان کے بچے جو ہیں وہ آگے نہیں نکل پائے، تو اسی میں میری خواہش تھی کہ میں ضرور ان کو ان کی جو ہے نا ایجوکیشن جو ان کے ذہن میں اس کو میں آگے ضرور پورا کروں گی۔ لیکن ان کو میری مدر کو بھی یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ میں اتنی زیادہ خود سے بھی کوشش کر سکتی ہوں اور اتنی ڈیسیژن لے سکتی ہوں۔ جب میں نے انجینئرنگ کے لیے کہا گھر میں کہ میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنی ہے، کیونکہ میں شروع سے جو ہے وہ ایک انٹروورٹ پرسنالٹی تھی، زیادہ تر کسی سے جو ہے وہ کھیلنا کودنا بچوں کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن میرا دھیان جو تھا وہ ہمیشہ پڑھائی کی طرف ہی ہوتا تھا کہ نہیں میں نے پڑھنا ہے، اور انٹرسٹ میرا گیجٹس بہت زیادہ جو ہے میں ان کے ساتھ کھیلتی تھی۔ جب بھی میرے فادر آتے باہر، جس طرح سے وہ بحرین میں ہوتے تھے، جب بھی وہ آتے تو میں ان سے کہتی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ میرے لیے موبائل یا کوئی جیسے وہ ٹوائے موبائلس ہوتے تھے اس ٹائم تو وہ لے کر آئیں، اور واچز ہوتی تھی وہ لے کر آئیں، تو اس طرح کی چیزیں ہمیشہ سے میں ان سے ڈیمانڈ کرتی تھی۔ میں نے کبھی ان سے کپڑے، جوتے، میک اپس، یہ چیزیں کبھی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ تو میرا شروع سے انہیں چیزوں کی طرف شوق تھا، اور جو سارے سب یہ چاہتے تھے کہ یہ واحد بچی اگر یہ ہمارے، کیونکہ میں بڑی بھی تھی اپنے اس میں پوری فیملی میں، تو سب کا تھا کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے، کیونکہ جیسے کہ ابھی بھی زیادہ تر فیملیز کہتی ہیں کہ جو پہلا بچہ ہے یا جو بھی زیادہ پڑھاکو بچہ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بن جائے تو زیادہ بہتر ہے، اسی طرح سے سب چاہتے تھے کہ میں بھی ڈاکٹر بن جاؤں۔ تو جب میں نے کہا کہ نہیں میں نے انجینئرنگ کرنی ہے، اور انجینئرنگ کرنے کے لیے کافی دور یونیورسٹی تھی، تو ایک دم سے سب نے جو ہے کہا کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے، بھائی ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ آپ ڈاکٹر بن جاؤ، اور کیونکہ ہماری فیملی میں اور کوئی اتنا نہیں ہے بچہ جس طرح سے آپ کو پڑھنے کا شوق ہے، تو آپ کو ڈاکٹر ہی بننا چاہیے تاکہ فیملی کو آپ سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ تو میرے لیے جو ہے وہ اس ٹائم بڑا مشکل تھا، کیونکہ میں ڈاکٹر بننا نہیں چاہتی تھی، تو میں نے جو ہے وہ اپنی مدر سے کہا کہ نہیں بھائی میں نے تو انجینئرنگ کرنی ہے، اور اس کے لیے جو ہے مجھے کہیں پہ بھی جتنا دور یونیورسٹی جانا پڑے یا کچھ بھی ارینجمنٹ کرنی پڑے تو میں نے تو کرنا ہے۔ تو میری پھر مدر نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے اس پہ ڈیسیژن کر رہی ہو تو پھر آپ کو خود ہی چیزیں پہ مینج بھی کرنی پڑیں گی اور دیکھنا پڑے گا۔ تو کیونکہ ڈیسیژن میں نے خود کر لی تھی، تو اس لیے پھر جو مشکلات بھی مجھے دیکھنی پڑی وہ مجھے خود ہی فیس کرنی پڑی چپ کر کے، وہ میں بتا نہیں سکتی تھی کسی کو کہ میں نے اب لے تو لیا ہے اسٹیپ، لیکن اب مجھے سب چیزیں خود ہی دیکھنی ہیں۔ تو میں نے جو ہے وہ اسٹارٹ کر دی انجینئرنگ۔ جب میں یونیورسٹی میں گئی تو میں صرف ایک ہی لڑکی تھی جو اپنی کلاس میں تھی، اور باقی سب جو تھے وہ لڑکے تھے، تو وہ مجھے بڑا مشکل لگا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، میں تو کس طرح سے پڑھوں گی اکیلے یہاں پر، کیونکہ اس ٹائم اتنا انجینئرنگ کا نہیں تھا، بچیاں اتنی زیادہ انجینئرنگ میں نہیں آتی تھی۔ تو پھر میں نے بڑی ہمت کر کے جو ہے وہ اسٹارٹ کر دیا پڑھنا، اور بہت محنت کی، 4 سال بہت زیادہ ایفرٹس کی، اور آخرکار جو ہے وہ میں نے انجینئرنگ کر لی۔ انجینئرنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر میں نے ماسٹرز جو ہے اپنی مدر سے کہا کہ میں آگے بھی پڑھنا چاہ رہی ہوں، جبکہ میرے جو فادر ہیں انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں اتنا انف ہے، ضرورت نہیں ہے آگے آپ اس میں مزید تعلیم حاصل کریں، لیکن پھر میری مدر نے دوبارہ اسٹیپ لیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں اس کا شوق ہے تو یہ پڑھے گی تو آپ
इसको करने दें, क्योंकि नाइट क्लासेस होती थी यूनिवर्सिटी में, तो ये एक और बड़ा चैलेंज था कि अब मैं किस तरह से करूँगी। लेकिन फिर मैंने हिम्मत की और मैंने जो है वो एमएस करना स्टार्ट कर दिया। एमएस के दौरान ही फिर मैंने साथ में जो है वो वहीं पे, जब एमएस अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैंने फेलोशिप स्टार्ट कर दी और इस तरह से बहुत बड़े ख्वाब लेकर जो है वो मैंने अपना काम जो है वो अपनी तालीम हासिल की। लेकिन तालीम हासिल करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि जो जितनी मुश्किलात से मैंने ये सब हासिल किया, उस तरह के लेवल पे मैं काम नहीं कर पा रही है, वो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नज़र नहीं आई अपने लिए। तो मैं बड़ा स्ट्रेस में आ गई कि ये तो मैंने इतनी एफर्ट भी कर ली और अब मैं इतने बड़े स्टेप्स भी ले चुकी हूँ, लेकिन मैं उस तरह के लेवल पे नहीं आ पा रही हूँ जितना मुझे आना चाहिए था, क्योंकि उस तरह की गाइडेंस नहीं थी, जब सब कुछ अपने ही तौर पर कर रही थी, ना कोई मुझे नज़र आता था जो मुझे गाइड कर सके। तो फिर मैंने जो है वो शादी के बाद जब मैं मुज़फ़्फ़राबाद कश्मीर में आई, तो यहाँ पे क्योंकि और ज़्यादा आपको पता है कि एक बैकवर्ड एरिया है, हिल स्टेशन है और यहाँ पे तो और भी ज़्यादा इश्यूज़ हैं पढ़ाई के लिहाज से, और यहाँ पे मेरे लिए बिल्कुल फिज़िकल अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। कोई भी सॉफ्टवेयर हाउसेस नहीं थे, कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे मैं अपनी टीचिंग को या अपने काम को कंटिन्यू कर सकूँ। तो ये चीज़ जो है, ये 7 टू 8 इयर्स जो है वो मेरी बहुत अपने आप से जंग रही और मैं हमेशा ये सवाल करती थी कि फिर मैंने क्यों पढ़ा, मैंने क्यों इतनी तालीम हासिल की, मैंने क्यों इतनी तकलीफ देखी, अगर मैं इसको यूटिलाइज़ ही ना कर पाई तो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी पिंच करती थी। फिर मुज़फ़्फ़राबाद आने के बाद मुझे बीकन हाउस में जो है वो जॉब ऑफ़र हुई और मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। लेकिन जॉब 7-8 इयर्स में बीकन हाउस में काम करती रही, लेकिन फिर भी मेरा दिल सैटिस्फाई नहीं होता था कि मैंने तो इंजीनियरिंग की थी, मेरी तो फ़ील्ड ही कोई और थी, तो मैं क्यों टीचिंग में इतने कम पैसों पर आ गई? क्यों मैंने अपने आप को इतने लो लेवल पे रखा? फिर मैंने सर रेहान अल्लाहवाला को ऑनलाइन सुनना शुरू किया और मेरे पास उस टाइम क्योंकि सिर्फ इंटरनेट था जिससे मैं बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट कर सकती थी, तो मैंने अपने मोबाइल पे उनको सुनना शुरू कर दिया और यूट्यूब पे उनको देखा, तो मुझे लगा कि ये वो मेंटोर हैं, ये वो टीचर हैं कि जो मेरी सोच के साथ अलाइन करते हैं और ये यही मुझे समझ सकते हैं कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं कैसे आगे जाना चाहती हूँ। इनसे बेहतर मुझे कोई टीचर नहीं मिल पाएगा। तो उनसे मैंने मैसेज किया उनको फ़ेसबुक पे कि इस तरह मैं काफ़ी अरसे से ये काम कर रही हूँ, लेकिन मैं एक लेवल से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पा रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरे अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे ठीक करनी चाहिए, लेकिन मुझे कोई मेंटोरशिप या गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो अपने तौर पे ही कर रही हूँ, अपनी मेहनत पे कर रही हूँ, तो मुझे जो है वो आगे चलना है। तो सर रेहान ने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छी लर्नर हैं, आप सुपरस्टार हैं और मैं आपको सुपरस्टार देखना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छा जो है वो अच्छे तरीके से बहुत आगे जा सकती हैं। तो मुझे यकीन नहीं आया कि किसी ने जो है वो ऐसी बात मेरे लिए कही है। मैंने तो ऐसे अल्फाज़ कभी सुने ही नहीं थे कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं मुझे कोई इतना काबिल समझता है, मेरे अंदर इतनी जो है वो एबिलिटी है जिसका शायद मुझे भी नहीं पता और बाकी भी आस-पास किसी को नहीं पता। तो ये इन्होंने कैसे ये बात कह दी? तो मुझे अपने कानों पे जो है वो यकीन नहीं आया और मेरा बहुत ज़्यादा मान बढ़ गया कि अच्छा, इट मीन्स कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि आप अपना जो है वो इंटरेक्शन इंटरव्यूज़ जैसे आपको भी कहते होंगे, हम सबको कहते हैं कि इंटरव्यूज़ लिया करें, एक-दूसरे से बात किया करें। इसी तरह से उन्होंने मुझे भी सिखाया कि इंटरव्यूज़ लें, बात करें। आप जैसे-जैसे आप अपने उससे सर्कल से बाहर निकलेंगी तो आप ज़्यादा लोगों के नेटवर्क जब आपका बनेगा तो आपका ज़हन खुलना शुरू हो जाएगा और आप जो है वो इस चीज़ से बाहर आ जाएँगी कि सिर्फ़ आप इसी दुनिया में रहती हैं, बल्कि अब आप एक ग्लोबल दुनिया में रहती हैं। तो मुझे फर्स्ट टाइम जो है जब मैंने इंटरव्यूज़ लेने स्टार्ट किए तो मुझे पता चला कि मैं सिर्फ़ मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर में नहीं रहती, मैं सिर्फ़ अपनी फैमिली में नहीं रहती, बल्कि मैं तो ग्लोबल दुनिया में रहती हूँ, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लोग अवेलेबल हैं, जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं उनके साथ कनेक्ट हूँ और मैं ग्रो कर सकूँ। तो इस तरह से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही आपकी जो इतने वे इंट्रोडक्शन था बचपन से अब तक की जो सफ़र आपने तय किया है उसमें
जो इतनी गुफ्तगू का अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो उसमें आपकी वालदा का बहुत रोल था। तो ये बात तो तय है कि वालदा की तरफ से मोटिवेशन बेटियों के लिए ख़ास तौर पे वालिदैन की तरफ से बहुत कारगर होती है। और जिस एनवायरनमेंट में आप रही, आपने ग्रो किया, फिर आप आके मेंटोर रेहाना लवाला साहब से कनेक्ट हो गए। अच्छा, अब उज़्मा हम चाहेंगे कि देखिए आजकल ख़वातीन के लिए बहुत सारे मसाइल हैं, हर औरत कमाना चाहती है, मगर बहुत सारे बैरियर्स हैं जो वो रुक जाती हैं। अच्छा, चाहती हैं कि आज काम शुरू किया और कल अर्निंग शुरू हो जाए। अब फ्रीलांसिंग सीखना, कोई अपना सेटअप शुरू करना, आपने इतनी तवील सफ़र अपना सुनाया है। अगर इसको किताबी शक्ल दी जाए तो ये एक अच्छा खासी किताब बन जाएगी, जो कि आपने अभी गुफ्तगू में अपनी बताया। हमारे ख़वातीन के लिए बताइए कि फ्रीलांसिंग क्या है और उनके ज़हनों को कैसे जिला बख्शी जाए इस बात के लिए कि घर बैठ के अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ किस तरह से वो अर्न कर सकती हैं, किस तरह से वो लर्न कर सकती हैं। कोई 3 बेसिक टूल जो ख़वातीन के लिए बहुत कारगर हों, ताकि पाकिस्तान की ख़वातीन को जो है एक तरह की स्ट्रेंथ मिले। इसके लिए आप जैसी शख्सियत की बातचीत जो है वो बहुत कारगर साबित होती है। जी, सबसे पहले तो ये है कि जैसे मैं जब तक फिज़िकल जॉब करती थी, तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि फिज़िकल जॉब तो आप सिर्फ़ जिस इलाके में रहते हैं, वहीं तक आप कर सकते हैं। आस-पास के जो आपकी रीच में जगह है, आप वहीं पहुँच सकते हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से आपकी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब रीच आपकी बढ़ती है, तो आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ भी ज़्यादा ओपन हो जाती हैं। अगर आप सिर्फ़ अपने शहर की हद तक महदूद रहेंगे, तो आपके पास बहुत कम लिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल होंगी, जो कि आजकल के दौर में मैं समझती हूँ ख़वातीन के लिए टेक्नोलॉजी एक नेमत है, कि उस नेमत को इस्तेमाल करते हुए वो अपने घर में बैठकर बहुत ज़्यादा रीच हासिल कर सकती हैं अपॉर्च्युनिटीज़ की। वो सिर्फ़ अपने शहर नहीं, सिर्फ़ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के सिर्फ़ मुख्तलिफ़ शहरों में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के ममालिक के लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकती हैं। अगर हम अपने ज़िंदगी में 100 लोगों का, अगर जैसे आप भी इंटरव्यूज़ करती हैं, 100 लोगों के साथ इंटरैक्ट करें, तो उनमें से हो सकता है कि 2 के साथ आपको कोई अपॉर्च्युनिटी नज़र आए। जब आप ये नेटवर्क अपना बढ़ा लेते हैं और पूरी दुनिया के लोगों के साथ इंटरैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको लोग समझना शुरू कर देते हैं, आपकी एबिलिटीज़ को जो है वो जानना शुरू कर देते हैं, तो आपके लिए खुद से जो है वो मौक़े क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया होता है फिज़िकल सेटअप्स के लिए। फिज़िकल सेटअप्स में काम करते-करते हमारा ज़हन बन जाता है कि इससे ज़्यादा की दुनिया कुछ है नहीं, या इससे ज़्यादा की हम अर्निंग नहीं कर सकते। अब जो हमारे फिज़िकल जो जॉब्स हैं, उसमें क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी एक जो है वो क्राइसिस से गुज़र रहा है, उसकी करेंसी पहले ही इतनी डाउन है, तो आपको मैक्सिमम कितनी सैलरी मिल सकती है? इवन अगर आप मैनेजर लेवल पे भी चले जाते हैं, तो आपकी एक लिमिट है कि आप उस अमाउंट तक जा सकते हैं। और ये चीज़ आप जो है वो टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी अर्निंग्स को उससे भी कहीं ज़्यादा कर सकते हैं और अपने घर की कम्फ़र्ट से कर सकते हैं। जो कि मैं ये नहीं कहूँगी कि घर की कम्फ़र्टेबल हर हर जो है वो ख़ातून को उस तरह की वो घर में भी कम्फ़र्टेबल होती होंगी। लेकिन उनके लिए बाहर निकलना, बाहर लोगों से इंटरैक्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि हमारे माशरे में उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया होता ख़ातून को बाहर लोगों के साथ इंटरैक्ट करने में, तो वो हमेशा से अपने घर में बैठकर ज़्यादा अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ वो एक सिक्योरिटी फ़ील करती हैं कि मैं अपने घर में बैठ के काम कर सकती हूँ। तो फ्रीलांसिंग जो है वो ऐसा ही काम है कि आपको कहीं फ़िज़िकली जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सुबह-सुबह अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के जो है वो कहीं तैयार होने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ्यूल ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने घर में अपने मोबाइल और अपने लैपटॉप के थ्रू जो है वो काम कर सकती हैं, और आपको अब पाकिस्तान में महदूद होने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आप हमेशा लो इनकम पे रहेंगे, बल्कि आप अपनी स्किल्स और एबिलिटीज़ को इतना बढ़ा दें कि आप बाहर के लोगों के लिए काम कर सकें और आप उससे डबल सैलरीज़ ले सकें, डबल इनकम अपनी इंक्रीज़ कर सकें। तो ये दौर जो है, ये सबसे बेस्ट दौर फीमेल्स के लिए है कि जो अब एक खातून अगर किसी भी एरिया में रहती हैं, किसी भी जगह रहती हैं, सिर्फ़ अगर उनके पास इंटरनेट अवेलेबल है, उनके पास मोबाइल अवेलेबल है, उनके पास लैपटॉप अवेलेबल है, कंप्यूटर है, तो वो अब अर्निंग कर सकती हैं। राइट। सिर्फ़
उनको अपनी स्किल को बढ़ाना है, अपनी एबिलिटी को बढ़ाना है, और स्किल के अंदर सिर्फ हार्ड स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स नहीं आती, बल्कि कम्युनिकेशन स्किल्स भी आती हैं। आपका दूसरे से बात करना, आपकी इंग्लिश स्पोकन, क्योंकि बाहर के जो लोग हैं उनसे आपको इंटरेक्ट करना है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरेक्ट करना है। इसी तरह आप को जो है आपको अपना इखलाक इतना अच्छा करना है कि आप क्लाइंट के साथ अच्छे तरीके से बात कर सकें। तो जब आप अपनी पर्सनैलिटी को और अपनी जो है सोच को टेक्नोलॉजी के थ्रू ज़ाहिर कर देते हैं, कैमरा के थ्रू वीडियो बनाकर, तो आप खुद लोग आपको पिक करना शुरू कर देते हैं। आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती जॉब्स ढूँढने के लिए। सही। जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी वो आपके पास खुद चल कर आना शुरू हो जाएँगी, जब आप बताना शुरू हो जाएँगे कि आप कौन हैं। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे अंदर जो एबिलिटीज़ हैं वो हम गलत जगह पर बताते हैं कि हम कौन हैं। हम राइट जगह पर अपने आप को एक्सपोज़ नहीं करते। हम ग्रेट, अपने अमेजिंग। उस्मा, यहाँ पे अपने मैं फिज़ि आपको रोक के माज़रत, यहाँ पे मैं आपको रोक के आपकी इसी जुमले से बात आगे बढ़ाऊँगी कि हम गलत जगह पे बताते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। उस्मा, आपका प्रोफ़ाइल मैंने विज़िट किया। मेरे ख़्याल में मोर देन 1000 लोगों को आप कुछ पढ़ा को ट्रेनिंग दे चुकी हैं ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। ये फ्रीलांसिंग ABCD क्या? एक खातून जो कि सिर्फ़ ये जानती हैं कि ये व्हाट्सएप है, ये फ़ेसबुक है, ये मोबाइल है, उनके लिए पहली स्किल कौन-सी होनी चाहिए कि वो सीखें और उनकी अर्निंग स्टार्ट हो? क्योंकि हमारे यहाँ एक तो ये ख्वाब बहुत है कि आज ही हमने कोई फैक्ट्री लगाई और कल ही उसमें से पैसा निकलना शुरू होगा। कौन सी एक आसान सीढ़ी है खवातीन के लिए या उन लोगों के लिए कि जो ज़्यादा इल्म नहीं रखते? जी, ये जो फ्रीलांसिंग की एबीसीडी है, ये सर रेहान ने इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाई कि जो जिन लोगों के पास अभी तक स्मार्टफ़ोन्स मुश्किल से पहुँचे हैं, और अभी भी बहुत सारी तादाद ऐसी है जिनके पास पहुँचे ही नहीं हैं, या जिनके पास अभी भी इंटरनेट की अच्छी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं, इंटरनेट नहीं पहुँचा, और या अभी नया-नया मोबाइल उनके हाथ में आया है, तो अभी उनको उसका बेहतर इस्तेमाल नहीं पता, और वो उसके थ्रू कैसे अर्निंग शुरू करें। जिसकी वजह से उन्होंने ये जो फ्रीलांसिंग की एबीसीडी है, एबीसीडी का मतलब ये है कि जैसे बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है, तो आप उसको एकदम से पूरे-पूरे सेंटेंस नहीं पढ़ाना शुरू कर देते, उसको पूरी बुक्स नहीं रीड करवाते, आप उसको पहले एबीसी पढ़ाते हैं, फिर उसको 2 वर्ड्स मिलाकर पढ़ाना शुरू करते हैं, फिर उसको पूरा सेंटेंस बनाकर पढ़ाना शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि वो पहले दिन एबीसी सीखे और आप उसको मैट्रिक की सनद दे दें कि ये लो आपने जो है वो क्लियर कर लिया और आप जो है वो काबिल बन गए। ये एक स्टार्ट है, क्योंकि हमें समझ नहीं आता, पूरे हमारे ज़्यादातर जो लोग हैं वो इस चीज़ में कन्फ्यूज़ हैं कि शुरू कहाँ से करें, शुरू ही नहीं करना आता। मुझे भी 7 साल लग गए, मैं उस सिरे को ढूँढती थी कि शुरू कहाँ से करूँ, और इस सोच में इतना टाइम भी वेस्ट कर दिया, जो कि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग मुझे भी मैसेज करते हैं कि शुरू कहाँ से करें, समझ नहीं आता। तो ये जो समझ नहीं आ रहा था, उस चीज़ को सर रेहान ने जो है वो स्टार्ट किया कि एबीसीडी फ्रीलांसिंग, अगर आपको नहीं पता क्या है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और आप कैसे शुरू कर सकते हैं। और उसके लिए आप एकदम से तो बड़ी-बड़ी टेक्निकल स्किल्स नहीं सीख सकते। कहीं से शुरू तो करना है ना, तो उसके लिए आप जो है वो कैनवा से शुरू करें। क्योंकि कैनवा जो है वो सबसे सिंपल ऐप है, और फाइवर सबसे जो है वो आसान मार्केट प्लेस है। तो आप अपनी चीज़ों को जो है वो लर्निंग को कैनवा से शुरू कर सकते हैं, और फाइवर पे आप उसको सेल करना सीख सकते हैं। और इस काम के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा जो है वो सिस्टम बड़े नहीं चाहिए, लैपटॉप नहीं चाहिए। अ, अगर आप जो है क्योंकि इससे ज़्यादा बड़े सॉफ्टवेयर्स पे जाएँगे तो फिर उसके लिए आपको मोबाइल से लैपटॉप पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी लैपटॉप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर वो अपने मोबाइल से एटलीस्ट थोड़ी बहुत अर्निंग शुरू करें, और जो उनको एक डायरेक्शन मिल जाए, एक अवेयरनेस मिल जाए, और उनको एक बिलीफ मिल जाए कि यस, फ्रीलांसिंग इज़ समथिंग, और ऐसा नहीं है कि ये झूठ है कि आप घर बैठ के भी कमा सकते हैं। तो ये जो एबीसीडी का सेशन है, ये उनको एक यकीन दिलाने के लिए है और उनको एक डायरेक्शन दिखाने के लिए है। ये करने के बाद उनकी मर्ज़ी है कि वो इसको आगे एज़ अ कैरियर लेकर चलना चाहें, तो चल सकते हैं, और अगर वो समझें कि नहीं, ये उनकी फ़ील्ड नहीं है,
तो वहाँ पे वो क्विट कर सकते हैं। जब वो ये सेशन कर लेते हैं तो फिर हम उनको डिटेल 2 मंथ्स का कोर्स ऑफर करते हैं कैनवा फाइवर का, कि अब अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि आपने फ्रीलांसिंग में जाना है, तो आप कैनवा फाइवर पे अपने जो है वो प्रैक्टिस करें। जब आप थोड़ा बहुत अर्न करने के काबिल हो जाएं तो फिर आप के पास दुनिया ओपन है, आप मजीद जितना चाहें लर्न करें, पूरी जिंदगी लर्न करते रहें और बेस्ट बन जाएं, एक्सपर्ट बन जाएं फ्रीलांसिंग के। लेकिन शुरू कहाँ से करना है उसके लिए ये फ्रीलांसिंग की एबीसीडी है। और इंशाल्लाह अभी हम जो है वो यूट्यूब की एबीसीडी स्टार्ट करने जा रहे हैं, कि ताकि वो लोग जो चैनल्स अपने स्टार्ट करना चाहते हैं और उनको नहीं समझ आ रही कि कहाँ से शुरू करें, तो उनको हम शुरू करना सिखा देंगे। उनको हम ये दोनों जो है फ्रीलांसिंग की एबीसीडी और यूट्यूब की एबीसीडी, ये एक जो है वो धक्का देने वाला काम है कि हमने समंदर में फेंकना है लोगों को, कि ये लें, आपको हमने फेंक दिया, आपको हमने पुश कर दिया, अब आप अपनी लर्निंग की जर्नी स्टार्ट करते हैं। और 1 लाख बहुत कम है जो कि हम बताते हैं कि 1 लाख आप अर्न कर सकते हैं, आप इससे कहीं ज्यादा अर्न कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जो है वो आपके पास अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। तो ये सारे जो है ना फ्रीलांसिंग की एबीसीडी की कहानी है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा उस्मा, अभी आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि इंग्लिश ज़ाहिर बात है आनी चाहिए जब भी आप डीलिंग करेंगे। तो फाइवर जो है वो, अभी मेरी पिछली किसी गेस्ट से गुफ्तगू थी तो उन्होंने कहा वो एक बाज़ार है, समझ लें एक तरह का मार्केट है जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या ऐसे लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि जो इंग्लिश नहीं जानते वो किस तरीके से कम्युनिकेट करें ताकि उन वो इस कहते हैं ना फर्स्ट, हमारे यहाँ एक एहसास कमतरी है, जिसको इंग्लिश नहीं आती तो वो समझता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए इस हवाले से क्या है आप लोगों के पास टूल्स वगैरह? जी, इसमें जो है वो ज़्यादातर हम जो है, क्योंकि फाइवर पे जब आप काम करते हैं तो आपने क्लाइंट के साथ मोस्टली लिख कर बात करनी होती है। समटाइम्स वो आपको कहते हैं कि आप उनके साथ स्काइप सेशन या जूम सेशंस कर लें, लेकिन ज़्यादातर जो है वो आपको लिख कर उनसे बात करनी है। तो इतना जो लिखने का काम है वो थोड़ा बहुत हर कोई कर ही लेता है। और उसके लिए आपके पास गूगल ट्रांसलेटर्स भी अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू अगर आप कोई भी लैंग्वेज है उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंग्लिश को एज अ हर्डल बनाकर आप ऐसा ना नहीं कर सकते कि भाई हमने काम शुरू ही नहीं करना क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती। जैसे जब भी कोई आप स्किल सीखते हैं तो एक दिन में नहीं सीखते, इसी तरह से इंग्लिश भी एक स्किल है, वो भी आप एक दिन में नहीं सीख सकते। तो जब आप काम शुरू करेंगे, बात करना शुरू करेंगे, क्लाइंट से बात करेंगे, और इसमें हम क्योंकि इस कोर्स में हम वीडियो पे भी काम करते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि हमने कैनवा और फाइवर सिखाया है, इस पे हम उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे भी काम कर रहे हैं। उनको जो है उनके अंदर इतना एतमाद पैदा कर रहे हैं कि वो वीडियोस पर आ सकें, वो टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंडली हो सकें। तो ये सारी तरबियत है, कैनवा फाइवर जो है वो पूरी एक तरबियत है। ये सिर्फ 2 स्किल्स नहीं है कि आपने कैनवा पे माइक्रो स्किल्स सीखी और फाइवर पे बेचना सीखा, बल्कि ये पूरी जो है वो पूरा कोर्स आपकी तरबियत हर लिहाज से करता है। आप में कॉन्फिडेंस भी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी, और साथ साथ में आप जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए भी जिस तरह से अगर जो समझते हैं कि हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो वो तब अच्छी होगी जब हम बात करना शुरू करेंगे। क्योंकि हम इंग्लिश में बात करते हुए इसलिए डर रहे होते हैं कि कोई हमारा मजाक उड़ाएगा, तो हम इसलिए बोलना ही नहीं शुरू करते। तो जब बोलना नहीं शुरू करते हैं तो फिर हम सीखते नहीं हैं। उसके लिए भी डिफरेंट लोग अवेलेबल हैं जो कि जिनसे हम बात कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंग्लिश जो है वो बात करने से आती है, पढ़ने और सुनने से भी ज्यादा। आप अगर किसी से बोलना शुरू कर दें और बस जैसी भी आती है शुरू कर दें सिर्फ बोलना, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी स्किल्स आपको साथ साथ जो है वो लेकर चलनी पड़ती हैं, फिर आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपर्टीज की तरफ जाते हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बहुत अमेजिंग और बहुत बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों, हमारे व्यूवर्स के जहनों की जो कहते हैं ना परतें खुलती चली जा रही होंगी, यकीनन जो भी हमें सुन रहे हैं और सुनते सुनेंगे बाद में। अच्छा, एक चीज़ ख़वातीन को इस खौफ से बाहर लाना है जो हमारे पाकिस्तान का एनवायरनमेंट है, कि जैसे हमने फेसबुक प्रोफाइल पे आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं, फिर अगर हमने किसी को भेज दी तो वो एक्सेप्ट भी हो जाती है, सब हो जाता है। उसके बाद वो समझते हैं कि ये जो हमने फेसबुक फ्रेंड बनाया है या हमने रिक्वेस्ट भेजी या हमने एक्सेप्ट की, तो हमने कुछ ताल्लुकात बनाने हैं, सुबह शाम मैसेजेस और इनबॉक्स भर जाता है
اگنور کرنے پہ بھی. تو یہ چیز خواتین کے لیے بہت بڑی ہرڈل ہوتی ہے, اور وہ گھبرا کے پروفائل وغیرہ اپنا لاک کر کے چلی جاتی ہیں کہ بھائی ہم تو بہت ہی بےتکی ریکویسٹیں آتی ہیں, بےتکی میسیجز. اس حوالے سے آپ ماشاء اللہ کنیکٹ ہیں ٹیکنالوجی سے, تو کیا کہتی ہیں آپ, کس طرح سے اس خوف کو ختم کیا جائے خواتین کے؟ یہ تھوڑا سا ہٹ کے سوال ہے فری کیونکہ لانسنگ سے. نہیں یہ بہت اچھا سوال ہے، اور فری لینسنگ بھی سیکھنے سے پہلے یہ سوال میرا خیال ہے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جو ہے کیونکہ ہمارا آپ نے جیسے کہا کہ پاکستان میں معاشرہ ہمارا سارا ایسا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ خوف بچیوں کے دل میں ڈال دیا ہوتا ہے، ان کو اتنا ڈرایا ہوتا ہے، اتنا فیئر ڈالا ہوتا ہے ہر چیز کا. وہ شروع سے گھر سے باہر قدم رکھنے کے لیے بھی 100 دفعہ سوچتی ہیں، 100 خوف ان کے دل میں آتے ہیں. یہ شروع سے بچپن سے ہم نے ارد گرد اتنا خوف والی باتیں سنی ہوتی ہیں، اتنے زیادہ پریشانیوں والی باتیں سنی ہوتی ہیں، ہر وقت ہائے ہائے سنی ہوتی ہے اپنے ارد گرد، جس کی وجہ سے ہمارے اندر اتنا کانفیڈینس نہیں ہوتا، ہم مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہو پاتے. ہماری کبھی کسی نے اتنی کاؤنسلنگ نہیں کی ہوتی ہے کہ جب اگر آپ کے پاس کوئی مشکل گھڑی آتی ہے، آپ کو کبھی کوئی فیئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کوئی مشکل کا، اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. ہینڈل کرنا نہیں سکھایا جاتا، صرف یہ خوف ڈالا جاتا ہے کہ یہ چیز ہو جائے گی. یہ نہیں بتایا جاتا کہ اگر ہو جائے تو اس کا سامنا کیسے کرنا ہے. تو یہ ہمارے جو مینٹل ہم بہت زیادہ ویک ہو چکے ہوتے ہیں. خاص طور پہ فیمیلز کے اندر اتنی اسی وجہ سے ایبلٹی ڈیولپ نہیں ہو پاتی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ نہیں، کبھی ہم نے ان کی ڈیسیژن کو جو ہے وہ ریگارڈ نہیں کیا ہوتا. ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ یہی سنا ہوتا ہے کہ جو گھر کا مرد ہے وہی ڈیسیژن کرے گا، وہی بڑا ہے، وہی ہر کام کر سکتا ہے. خاتون کی اپنی کوئی ڈیسیژن نہیں ہے، اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ہر فیصلے کے لیے، ہر رد عمل کے لیے پہلے وہ اپنے گھر کے مرد کو دیکھتی ہے کہ یہ مجھے بچائے گا. اس نے خود کو بچانا نہیں سیکھا ہوتا. اس وجہ سے جب وہ ٹیکنالوجی سے انٹریکٹ کرتی ہیں اور جب مختلف لوگ ان کو تنگ کرتے ہیں، ان باکس کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں، تو ان کو ہینڈل نہیں کرنا آتا. وہ اپنا کام چھوڑ دیتی ہیں. وہ ان کو یہ نہیں سکھایا گیا ہوتا کہ ان سب کو بگانا کیسے ہے، ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. یہ جو خوف ہے یہ ان کو بہت زیادہ جو ہے نا ڈرا جاتا ہے. جو مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ان کے اندر ریزسٹنس ہوتی ہے، تو وہ رک جاتے ہیں، وہ کام اپنا کنٹینیو کرتے ہیں. لیکن جو ڈر جاتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں. حالانکہ ٹیکنالوجی میں ایسے لوگوں کو ہینڈل کرنا زیادہ ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو فزیکل جگہوں پہ ہیرسمنٹس کو، کیونکہ ٹیکنالوجی میں آپ کو کوئی بھی فون سے یا لیپ ٹاپ سے نکل کر کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ جو کہ پرابلمس آپ کو فزیکل جگہوں پہ ہوتی ہیں، آپ ٹیکنالوجی میں تو آپ کے پاس بہت ساری آپشنز اویلیبل ہیں ان کو بلاک کرنے کی، کالز کو بلاک کرنے کی. تو اس میں تو میرا خیال ہے کہ ڈرنے والی بات ہی نہیں ہے، ہینڈل کرنا سیکھنا ہے. اور جیسے بازار میں جب کوئی نئی چیز آتی ہے، جب بھی کوئی نیا ٹرینڈ چلتا ہے، سب بھاگتے ہیں اس کی طرف، اس کو لینے کے لیے. اسی طرح ٹیکنالوجی جو ہے ہمارا سوشل میڈیا پہ خواتین آتی نہیں ہے، سامنے ہی نہیں نظر آتی. تو جب نظر آنا شروع ہوئی ہیں تو لوگوں کو یہ نئی نئی چیز لگی ہے. لوگوں کو پہلی دفعہ جو ہے وہ نظر آیا ہے کہ کوئی خاتون جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، تو وہ اس کی طرف لپکتے ہیں. وہ اس کو جو ہے وہ ان باکس کے تھرو آتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس سے پہلے انہوں نے یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ ایسے لوگوں کو دیکھا نہیں ہوتا. تو جب ایک چیز نارمل ہو جاتی ہے، جب سبھی آنا شروع ہو جائیں گے، ہر وقت آنا شروع ہو جائیں گے، ایک چیز نارمل ہو جائے گی، تو پھر باقی لوگوں کو بھی یہ نارمل لگنا شروع ہو جائے گا. جب تک یہ یونیک رہے گا، جب تک کم کم نظر آئے گا، تو تب تک ایسا جو ہے وہ خواتین کو فیس کرنا پڑے گا. لیکن مجھے اس چیز کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ جب میں نے 1 سال پہلے جوائن کیا تھا تو صرف 2-3 خواتین نظر آ رہی تھی، اور اب الحمدللہ بہت ساری خواتین ہیں جو ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہیں. تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کو دیکھ کر باقی خواتین کو بھی ہمت ملے گی، حوصلہ ملے گا، اور ان سے وہ سیکھیں گی کہ ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. زبردست، بہت زبردست عظمیٰ. آپ نے جس طرح سے یہ فائٹ کرنا سکھایا ہے کہ ٹیکنالوجی سوشل میڈیا پہ آ کے کیسے فائٹ کرنا چاہیے خواتین کو، اور آپ کے بہت سارے قیمتی جملے کہ ہم اپنے گھر کے مرد کو، چاہے وہ جس بھی رشتے میں ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ڈیفینڈ کرے گا، ہمیں اپنے آپ کو سے خود
डिफेंड करना नहीं आता। और बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही कि लैपटॉप में से कोई निकल के नहीं आ जाएगा, टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़्यादा अच्छा फाइट कर सकते हैं आप एज़ कम्पेयर टू फिज़िकली। आजकल ख़वातीन में ये बात बहुत है कि जी घर में बोर होते हैं, कहीं चलो जॉब पे चलो। अब वो जॉब पे जाने के लिए उनको ये नहीं अंदाज़ा होता कि उन्हें कितने मराहिल से गुज़रना होगा, फिज़िकली जाना, कन्वेंस, ये खर्चा, और इतनी बड़ी नेमत हमारे पास मौजूद है, उसको हम नज़रअंदाज करके अपने घर को छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं। ये हमारे यहाँ का अलमिया है। आपकी गुफ्तगू बहुत कीमती, आपका बचपन, आपका जर्नी, आपका टेक्नोलॉजी से जुड़ना और फ्रीलांसिंग एबीसीडी जो इस तरह आपने बताई है, शायद मैं ना समझ पाती। हालाँकि मैं भी काफ़ी अरसे से कनेक्ट हूँ टेक्नोलॉजी से, ये मेरा शौक़ है। मैंने बाकायदा कोई तालीम हासिल नहीं की है कंप्यूटर की, मगर अपने शौक़ की वजह से मैं तकरीबन 2003 या 4 से कनेक्ट हूँ इससे, और इसीलिए मुझे सोशल मीडिया पे आने में इतनी मुश्किल भी पेश नहीं आई। अच्छा, आखिर में उज़्मा, बातचीत का तो दिल चाह रहा है कि आपसे किए जाएँ, सीखे जाएँ और पढ़े जाएँ। आपका एक-एक लफ्ज़ जो है आपकी टीचिंग स्किल्स को भी ज़ाहिर कर रहा है, आपके स्किल्स को भी ज़ाहिर कर रहा है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि आपने जैसे कहा कि हम एबीसीडी वग़ैरह सिखा देते हैं, फिर तमाम कम्युनिकेशन स्किल, इन मराहिल से गुज़रने में आपसे जितने स्टूडेंट्स कहूँगी मैं, ज़्यादा आप ट्रेनर हैं तो आपके स्टूडेंट आके जुड़े, उनमें से आप क्या समझती हैं कि जितने आए थे उतने सबने सक्सेस पाई, या कुछ बीच में से कितने परसेंट लोग क्विट करके चले गए? अ, ये जो परसेंटेज है ये हमेशा से आपने देखा होगा कि लीडर्स बहुत कम नज़र आते हैं। आपने हमारे मुल्क में भी देखा होगा कि क्यों इतने कम लोग जो हैं वो हमें नज़र आते हैं सामने। बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं और बहुत कम लोगों का जो है वो मकसद होता है कि वो अपने ज़हन में किसी मकसद को लेकर ज़िंदगी बसर करते हैं। तो वो एक जो पहले आपने बात की थी कि बहुत सारी ख़वातीन बोर हो रही होती हैं इसलिए जॉब कर लेती हैं। तो इस चीज़ को चेंज करना बड़ा ज़रूरी है कि आपने किसी मकसद के लिए जो है वो काम करना है, कोई भी जॉब जो भी करनी है वो आपने किसी मकसद को ज़हन में रख के करनी है, ना कि सिर्फ़ वो आपने अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए या अपने बच्चे या अपने ख़ानदान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए करनी है, बल्कि आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए कि आप तो जो है वो पूरी नेशन की बिल्डर हैं, आपने तो पूरी नेशन को साथ लेकर चलना है और एक औरत जो होती है वो पैदाइशी लीडर होती है। अल्लाह ताला ने उसके अंदर बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ डाली होती हैं। वो अपना घर भी सँभाल लेती है, वो बच्चे भी सँभाल लेती है, वो जॉब्स भी कर लेती है, वो मायके भी सँभाल लेती है, वो ससुराल भी सँभाल लेती है, वो हस्बैंड भी सँभाल लेती है, वो सब कुछ करने के काबिल होती है। उसके अंदर अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा सलाहियत पैदा की होती है, सिर्फ़ हमने उसकी सलाहियत को राइट डायरेक्शन में नहीं जो है वो डाला होता उसको, जिसकी वजह से उसका ज़हन नहीं खुल पाता। वो अपने ही सिर्फ़ एक घरेलू एनवायरनमेंट के अंदर रह जाती है। हमने उस क्योंकि हम इतना ट्रस्ट नहीं करते उसके ऊपर। अगर हम उसको अपने साथ लेकर चलें और उसको बामकसद ज़िंदगी गुज़ारने की तरबियत दें, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है। वो सिर्फ़ अपने बच्चों नहीं बल्कि पाकिस्तान के, दुनिया के बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है। उसके अंदर अल्लाह ने इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी दी हुई है। और जो सेकंड आपने जो है वो बात की कि हम किस तरह से जो ये जैसे आपने कहा कि हम मज़ीद इसको कैसे फ्रीलांसिंग जो आप बात कर रही थी कि हम कैसे इनको सिखा सकते हैं। तो उसमें यही है कि जो टेक्नोलॉजी से जितना ज़्यादा आप वीडियोज़ के ऊपर आएँगे, इंटरैक्शन करना शुरू करेंगे और डेली बेसिस पे चाहे थोड़ी-थोड़ी देर के लिए आते चले जाएँ, तो उससे ये होगा कि आपका जो है वो खौफ और डर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और आप ज़्यादा बेहतर अपने आप को जो है वो सबके सामने प्रेज़ेंट करना शुरू हो जाएँगे। और फिर वही है कि जब सही जगह पे बोलना शुरू हो जाएँगे तो इंशाल्लाह आपके लिए जो है वो ज़्यादा बेहतर जो है वो ज़राए और खुलना शुरू हो जाएँगे और आप टेक्नोलॉजी की मदद से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आगे ग्रो कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। उज़्मा, जितनी भी बातचीत आपसे रही हमारी, इब्तिदा से इंतहा तक, और टाइम जो है इजाज़त भी नहीं दे रहा है, और दिल तो चाह रहा है कि आपके साथ बहुत सारी एपिसोड की जाएँ। इंशाल्लाह फिर किसी और दिन, किसी और टाइम हम आपसे कीमती वक़्त में से कुछ टाइम लेंगे। अच्छा सफ़िया, आई और एम सॉरी मैं फ्रीलांस एक चीज़ भूल गई, आपको कट कर रही हूँ। परसेंटेज आपने जो पूछी थी, मैं इस सवाल हुँ, को भूल गई कि परसेंटेज जो है वो अ, बहुत कम है, ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि वो जो फ़ियर वाला फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है जिसकी वज़ह से ये परसेंटेज बहुत कम है।
اور जितनी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, उस लिहाज से अभी भी कम है। लेकिन जिन लोगों ने इसको क्रॉस कर लिया है और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाबी की तरफ चल निकले हैं। लेकिन जिन्होंने खौफ को नहीं उसके ऊपर काबू पा सके, तो वो दरमियान से क्विट करके छोड़ गए हैं। और ये सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं, बल्कि ये हर जगह ही मर्द हज़रात में भी यही देखने में आया है कि जहाँ पे जो एक तो जल्दबाज़ी कि उनको होता है कि जैसे ही हमने फ्रीलांसिंग का एबीसीडी सेशन लिया, नेक्स्ट डे हमने 1 लाख रुपए के हम जो है वो कमाने के काबिल हो गए। हमने 2 महीने का कोर्स लिया तो हम लखपति बन गए और हम फ़ौरन ही जो है, और अगर नहीं बन पाए तो वो वहीं छोड़ देंगे, उनका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। ये जो जल्दबाजी है ये हमें आगे नहीं जाने दे रही होती है। तो जो है ये सफ़र बहुत लंबा होता है, लेकिन अगर इसको कंसिस्टेंसी के साथ किया जाए तो आप इसको अचीव कर सकते हैं। तो ये जो परसेंटेज रह जाती है वो इसी वजह से रह जाती है कि वो अपने फ़ियर पे काबू नहीं पा सकते और जल्दबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं। सब्र के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ नहीं चल पाते। सही, सही, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। उस्मा, मैं तो ये कहूँगी कि आपने जो है वो कहते हैं ना कि दरिया को कूज़े में बंद कर दिया कि फ्रीलांसिंग क्या है, ये सफ़र क्या है। हमें सब्र के साथ और बहुत ही बिल्कुल वही मिसाल है कि परिंदा भी सुबह को उड़ के जाता है अपने घोंसले से निकल के और इसकी तलाश में, और वापस आता है, तवक्कुल करता है और मुँह में चोंच में अपने दाना को दूसरे दिन के लिए नहीं लाता। तो हमें अपने इस भरोसे को और इस एतमाद को कायम करके आगे बढ़ना है और इस खौफ को ख़त्म करना है, जिसमें उज़्मा हफ़ीज़ जैसी शख्सियत हमारे साथ हैं। मैं तमाम ख़वातीन व्यूअर्स ख़ास तौर पे जो सुनेंगी, तो वो इस गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद होंगी और होना भी चाहिए। दुनिया में कहते हैं ना कि सामने आने के लिए हम जो है आपको सामने आना होगा, खुद लड़ना सीखना होगा और खुद आगे बढ़ना होगा। टेक्नोलॉजी आपके पास एक बहुत बड़ी नेमत है उज़्मा, बहुत कीमती बातचीत, बहुत कीमती गुफ्तगू, बहुत कीमती वक़्त आपने हमें दिया। थैंक यू सो मच। और इसी तरह से काम करती रहिए, आगे बढ़ती रहिए। और मैं यहाँ व्यूअर्स को बताती चलूँ कि जो लोग भी उज़्मा हफ़ीज़ से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उज़्मा हफ़ीज़ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपना टेक्नोलॉजी का सफ़र शुरू कर सकते हैं। आपकी गुफ्तगू में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी, 7 साल। आपने कहा कि मैं 7 साल में भी वो सिरा ढूँढती रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स अपनी मंज़िल पे पहुँचेगा और हमारी दुआ है सबके साथ, पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान की ख़वातीन के साथ है, हमारी यूथ के लिए है। तो यहीं पे हम अपनी बातचीत का इख्तिताम करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जी, अल्लाह हाफ़िज़। ज़िंदाबाद।